Hey guys. Welcome to Happy Interviews. Subscribe to our channel if you are preparing for interviews. We conduct free mock interviews to boost the candidate's confidence and provide reference material to prepare well for the interview. Let's start with today's discussion. Hey guys, so let's talk about couple of questions that you people might face in your interview related to Python. So the first question today we have is what are the Python built-in objects? So built-in objects in Python are the numerical values, the strings, the lists, the dictionaries, tuples, files, or sets. There are some Boolean types, that is true or false, and none is also a type of object which defines nothing. When you want to initiate, or when you want to put a null value or nothing value to a tag or a variable, you can say. And some there are some functions also, that is lambda, apply function, and def, and import. These are the built-in objects that are present in Python. You must be familiar with, like, if you have used other programming languages, then you must know that in integer, so the here number is representing that integer, and strings are basically the character values, and list is basically the ordered collection of unlabeled data. Dictionary, you can say, is an collection of labeled data. Tuples, we'll discuss these things in the later part. Let's go further. For an example, I can say that let's say a is 20 to 12. So this is a number type, okay, and b equals to mm, India. So this is a string type, okay. And if I say L is equal to square bracket, mm, so this is a list, okay. And what should I tell you more? So these are the basic examples. Mm, Operations on numbers. So an interviewer can ask you, like, what are the different operations, or he can particularly ask you for some operations. Like, there are some tricky operations you have. All of us knows that 1 plus 2 is 3, or 2 minus 1 is 1, or you can say 3 multiply 5 is 15. So these are the basic operations that every programming language supports, and same as Python. If I say 4 divide by 2, so the answer is 2. There are some tricky mathematical operations which an interviewer can ask. Let's check those. So when I put 4 divide by 2, then it gives you the quotient, right? And if you want to see the remainder, so 5, so this will give you the remainder of the operation, okay. And one more thing we have here is floor division method. So 2, right? uh, and 5. So you see the difference. This is a normal division in which a complete division is done, and this is a floor division method in which like, अगर जैसे 2.5 इसका आंसर आ रहा था, तो फ्लोर डिवीजन मेथड क्या करेगा, जो नीचे की वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा. So here we are getting the output as 2. Okay. So what are the operations on strings? There are many operations which are done on strings in Python, like
Let's initiate a string first. This is, let's say, I must tell you, string is a immutable object type. Okay, immutable means that once you have created a string, you cannot edit. You cannot edit that thing. Okay, you have to create a new string if you want to make any kind of changes in that particular string. So let's say okay, uh, why this is Python. Okay, so we have the result Python, and let's talk about some operations. So if I multiply this by 2, see, I'm getting Python 2 times. I'm getting the result twice. Okay, and let's say I want to concatenate this string with another string. So what can I do here is a plus, and then I can enter a new string space. See, we have a new result here is Python programming. We had Python stored in A, and then we concatenated using plus symbol programming. So the output here is Python programming. Another what other things we can do is like we have replace function. Many functions we have, like the Python here is in lowercase, right? So let's do it in uppercase. See, now the Python is converted into uppercase. But see this thing, जो ओरिजिनल ए थी वो कभी चेंज नहीं होगी. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. इस पे कोई भी चेंजेस हम कर रहे होंगे, जो हमने इनिशिएट किया था ए को, वो वैल्यू वही रहेगी. इसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी. हमने इसको अपर केस किया तो उसका जो रन टाइम वैल्यू आई वो हमारे पास पाइथन अपर केस में आ गया, बट उसकी एक्चुअल वैल्यू पाइथन एंड स्मॉल लेटर्स ही रहा. ठीक है, तो अगर हमें इसको अपर केस में करना था तो हमें इसको दोबारा से इनिशिएट करना पड़ता. यहाँ पे अब इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसे और भी ऑपरेशन है, जैसे अपर हो गया तो लोअर भी है. फिर चेक करने के लिए कि डिजिट है ये स्ट्रिंग या फिर अल्फा है, तो इज अल्फा इज डिजिट. सो सब तो अभी नहीं होगा. आई एम जस्ट टेलिंग यू. स्प्लिट फंक्शन होता है स्ट्रिंग्स के लिए. I can write it here. स्प्लिट फंक्शन होता है जिसमें मैं दिखाता हूँ ये करके. जैसे ए अगर हमने ले लिया यहाँ पे, पाइथन इज गुड. Okay, now we have a complete sentence in stored in A. यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो पूरी स्टेटमेंट थी ना, पाइथन इज अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये पूरी रो में, पूरी उस लाइन में स्पेसेस को ढूंढता है और उसके बेसिस पे सेंटेंस को स्प्लिट कर देता है और एक लिस्ट आउटपुट दे देता है. यहाँ पे अब पाइथन इज अ गुड लैंग्वेज. 1 2 3 4 5 6, एक 6 एलिमेंट्स की लिस्ट बन गई. ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं. अगर हमारे पास कॉमाज में तोड़ने, अगर हमारे स्ट्रिंग में कॉमा है बहुत सारे, तो हम उसके बेसिस पे तोड़ सकते हैं, या फिर कोई भी रैंडम हम इस पे वैल्यू दे सकते हैं जिसके बेसिस पे हमें किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है. ठीक है, आगे चलते हैं. सो व्हाट इज अ लिस्ट? Okay, so the definition here is basically list is an positionally ordered collection of arbitrary type objects. इसमें इंडेक्सिंग होती है प्रॉपर, जीरो से लेके लास्ट तक. तो हमें अगर कोई एलिमेंट चाहिए होता है तो हम उस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. कोई नया एलिमेंट डालना होता है तो हम उसको अपेंड कर सकते हैं. कोई एलिमेंट निकालना होता है तो उसके अंदर उसको रिमूव कर सकते हैं. So list is very useful object in Python. Okay, so operations on list.
ऑपरेशंस ऑन लिस्ट जैसे मैंने भी बताया, अगर हम एक एग्जांपल लेके देखें, L इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये अगर L को प्रिंट करा दें तो ये लिस्ट आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे इंडेक्सिंग की मैंने बात करी, तो इंडेक्सिंग कैसे होती है, इंडेक्सिंग इसमें जीरो से इनिशिएट होती है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इंडेक्सिंग जीरो से n-1 तक चलेगी, जो इसकी लेंथ होगी -1 तक चलेगी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट राइट टू लेफ्ट, तो इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। यहाँ देखिए एक बार, जैसे अगर मैं L0 प्रिंट करूं तो इट विल गिव मी 1, दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। और अगर मैं यहाँ पे L माइनस 1 प्रिंट करूं तो इट विल गिव मी द लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट 7। तो ये मैं कह रहा था कि अगर -1 से स्टार्ट करते हैं तो पीछे से लिस्ट इटरेट होनी स्टार्ट होती है, और 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर वो इंडेक्सिंग उसकी पहली पोजीशन से पकड़ना स्टार्ट करेगा। तो इंडेक्सिंग हो गई। स्लाइसिंग हो जाती है, जैसे स्लाइसिंग अगर मैं यहाँ पे माइनस से -4 से -1, सॉरी। तो ये स्लाइसिंग हो गई। अगर हमें एक सब लिस्ट चाहिए हो, किसी लिस्ट में से अगर हमें एक सब लिस्ट, हमें पता है कि 5th से लेके 7th इंडेक्स तक की वैल्यूज हमें चाहिए, तो हम इस तरीके से उसमें कॉलन यूज करके और लोअर और अपर लिमिट मेंशन करके स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें सॉर्टिंग भी होती है, और नया एलिमेंट डालने के लिए अपेंड कर दो। जैसे हम उसमें सी प्लस प्लस में और उसमें पूरा पूरा प्रोग्राम लिखते थे ना सॉर्टिंग के लिए, अब इसमें क्या है, सिंपली सिर्फ जैसे ये लिस्ट तो सॉर्टेड मैंने दे ही दी। अगर मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 40 दे देता हूँ, ठीक है। 123, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ एल डॉट सॉर्ट, और ये एल 1 3 5 6 7 20 40। और क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट टाइप है, तो एल के अंदर ही चेंजेस हो गए, मतलब मैंने बाद में एल को ही प्रिंट कराया और एल के अंदर ही ऑलरेडी चेंजेस हो गए, ठीक है। तो अब इसमें एक अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जैसे लिस्ट के अंदर पॉप और लिस्ट के अंदर रिमूवल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस क्या है कि जब हम पॉप करते हैं तो हम इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं उस लिस्ट का, मतलब ये दोनों काम, दोनों फंक्शंस बेसिकली उसको वैल्यू को रिमूव करने के काम आते हैं। बट पॉप फंक्शन से क्या होता है कि हम इंडेक्स देते हैं, जैसे अगर मेरे को 5th एलिमेंट निकालना है तो मैं दे दूंगा लिस्ट डॉट पॉप, मतलब लिस्ट का नाम डॉट पॉप, और उसकी 5th वैल्यू दैट इज 5th इंडेक्स। तो अगर हमारे पास पिछला जो लिस्ट थी हमारे पास, अगर उसकी अगर हम बात करें, और अगर मैं बोलूं कि मेरे को यहाँ पे 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे जो 5th वैल्यू है, मतलब जो 5 है वैल्यू, उसको मेरे को अगर हटाना है तो मैं क्या करूंगा, एल डॉट पॉप और 2। और ये म्यूटेबल होने की वजह से ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस हो गए। अब ओरिजिनल लिस्ट में से 5 जो है वो गायब हो गया, ठीक है। अब अगर मैं रिमूव करना चाहता हूं किसी नई चीज, किसी चीज को, तो रिमूव के लिए क्या करना है, रिमूव के लिए क्या करेंगे हम, एल डॉट रिमूव, और यहां पे अब हम वैल्यू देंगे। अगर हमें कोई वैल्यू, पर्टिकुलर कोई वैल्यू रिमूव करनी है, जैसे अगर मैं यहां से 20 रिमूव कर दूंगा, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 3 6 7 40। अब यहाँ पे 20 रिमूव हो गया, तो डिफरेंस देखा कि पॉप के अंदर हम इंडेक्स प्रोवाइड करते थे और रिमूव के अंदर हम सीधी सीधी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि इंडेक्स एरर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ये एक इंडेक्स के, ये लिस्ट के अंदर एक एरर आता है जब कभी हम किसी उस इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो प्रेजेंट नहीं होता लिस्ट के अंदर। अगर मैं ट्राई करूं यहाँ पे, तो हमने सेकंड इंडेक्स को यहाँ से रिमूव किया था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, ये चल रहा है, ठीक है। तो इस पे वो चेंजेस नहीं आए हैं। तो 0 1 2 3 4 एल 5
सी लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो हमारे पास एलिमेंट्स टोटल वैसे तो 5 थे, लेकिन जीरो से इंडेक्स शुरू होने की वजह से जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू रही वो 4 रही। और अगर मैं 5 डाल के एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा मेरे पास, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्टेड लिस्ट नहीं है, नेस्टेड लिस्ट है। सो what is basically a nested list? Nested list is following the same concept of nesting that you people might have came across in other programming languages also. जब एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट को एक्सेस करना शुरू कर दें तो उसको नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। इसके बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसके अंदर। जैसे हम मैट्रिक्स, अगर अभी इन फ्यूचर व्हेन विल टॉक अबाउट numpy एंड pandas एंड डेटा एनालिसिस, तो उसमें हमें समझ में आएंगी ये चीजें कि हमें मैट्रिसेस की जब जरूरत पड़ती है या फिर कोई भी 2D 3D मैट्रिक्स जब बनानी होती है तो हम उसमें नेस्टेड लिस्ट्स का यूज करते हैं। और उसमें फिर इंडेक्सिंग, डबल इंडेक्सिंग चलती है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दे के बताऊं, q इक्वल्स टू 3 4, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे q की जीरोथ वैल्यू को एक्सेस करूं तो 1 आंसर आएगा, है ना। अब मेरे को 3 प्रिंट करवाने दो। 3 कैसे प्रिंट होगा यहाँ पे, q, अब ये 3 है कहाँ पे, 0 1 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और उसकी उसकी जीरोथ पोजीशन पे, क्योंकि वो दैट इज अगेन अ लिस्ट, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और व्हाट आर पाइथन कॉम्प्रिहेंशंस? बेसिकली पाइथन कॉम्प्रिहेंशंस एक बहुत ही रॉबस्ट तरीका है। मतलब जो हमारे पास ये नेस्टेड लिस्ट वगैरह आ गई ना, तो अब हमें इसको एक्सेस भी करना था। तो इसको एक्सेस करने के लिए जैसे एक मैट्रिक्स बन गई, तो एक मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या चाहिए कि हमें पूरी पूरी रोज चाहिए या पूरे पूरे कॉलम्स का डेटा चाहिए। तो उन सब चीजों को वर्क अराउंड करने के लिए पाइथन कॉम्प्रिहेंशंस का इंट्रोडक्शन आया। Python includes a more advanced operation known as list comprehensions expressions, which turns out to be a powerful way to process structures like matrices. ठीक है। अब है what are the Python dictionaries? तो अभी हमने जो लिस्ट्स की बात करी, लिस्ट्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये एक ऑर्डर्ड डेटा है जिसमें अनलेबल डेटा की हम बात करते हैं। बट डिक्शनरीज में टोटली डिफरेंट हो जाता है। डिक्शनरीज में ये क्या होता है, डिक्शनरीज में ऑर्डर्ड ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इसमें हम मैपिंग करते हैं डेटा की। ये बेसिकली लेबल डेटा होता है। इसमें हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है। तो अगर जैसे हमारे पास है, अगर हमारे पास हेडिंग है नेम और उसके अंडर में हमारे पास वैल्यूज है 10 12, तो हम डिक्शनरी सेव करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा उसमें। ठीक है। Python dictionaries are something completely different. They are not sequenced at all, but are instead known as mapping. ठीक है। तो अब इसका अगर एक आधा कोई एग्जांपल अगर करके देखें, तो मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी एक बना के देखता हूँ, डी इज इक्वल टू, और ये करली ब्रेसेस दे के बनती है। मतलब विद इन करली, जैसे लिस्ट हमारी बनी थी स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डिक्शनरी हम बनाते हैं करली ब्रेसेस में। तो ये हो गया हमारी की, ठीक है। और ये हो गई हमारी वैल्यू। ठीक। तो की हमारे पास दो हुई, जिसमें कि फूड और टेस्ट, और वैल्यूज उसकी क्या हुई, इंडियन और यम। अगर हम यहाँ पे डी डॉट कीज कर दें, तो ये दो कीज आ गई हमारे पास इसकी, है ना।
अच्छा, ये अगला क्वेश्चन यही था, क्रिएट अ डिक्शनरी। तो ये ऊपर डिक्शनरी बनाई दी है हमने, इसको मैं यहाँ से यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। डिक्शनरी हमारे यहाँ पे बन गई। ठीक है, फेच अ वैल्यू फ्रॉम डिक्शनरी। अब ये और बताता हूँ मैं कि फेच कैसे करनी है। जैसे अब मेरे को देखना है कि चलो यहाँ पे एक दूसरी डिक्शनरी बनाते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं नेम। नेम में यहाँ पे आ गया सचिन। और टीम इंडिया। ठीक है, तो ये डिक्शनरी बन गई। अब मेरे को अगर ये चेक करना है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसका नाम क्या है, सचिन। इस तरीके से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, डिक्शनरीज के अंदर।